بلیٹن میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے ساہیوال کے دورے کی۔ وزیر اعظم آج ساہیوال کا دورہ کریں گے۔ شہر کے لیے 18 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی متوقع ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام کا افتتاح اور ہیلتھ کارڈ کی تقسیم بھی شیڈول ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام کا بھی ساہیوال میں افتتاح کریں گے۔ عمران خان کامیاب کسان پروگرام کی تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کلین اینڈ گرین پروگرام کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ عمران خان احساس پروگرام کے چیک بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم خطاب میں ساہیوال کے لیے اہم حکومتی اقدامات کے اعلان بھی کریں گے۔ جی ہاں، وزیر اعظم خطاب میں ساہیوال کے لیے اہم حکومتی اقدامات کا بھی اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر ساہیوال پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کلین اینڈ گرین پروگرام کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ عمران خان احساس پروگرام کی چیک بھی تقسیم کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاع اور سیکیورٹی میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزہ دورے پر قطر پہنچے، جہاں انہوں نے احمد بن محمد ملٹری کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھی اور جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیڈٹس کو دی جانے والی تربیت کے معیار کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے نائب وزیر اعظم وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غنیم بن شاہین سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر جاری ہے۔ کرونا وائرس نے مزید 46 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے، جہاں بک افراد کی مجموعی تعداد 11,560 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز کرونا کے 1,644 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 46 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 11,560 تک جا پہنچی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 5,41,031 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 2,44,340، پنجاب میں 1,56,404، KPK میں 67,451، بلوچستان میں 18,779، اسلام آباد میں 41,167، آزاد جموں کشمیر میں 8,953 اور گلگت بلتستان میں 4,909 مریض۔ NCOC کے حکام کا کہنا ہے کہ کرونا کو شکست دینے والوں کی شرح بڑھنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 91.8% رہی۔ اب تک 4,96,745 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ طویل عرصے کے بعد حکومت کے سیاسی سٹرکچر پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ 2.5 سال کے بعد بھی اس کابینہ کے ایک بھی رکن کا کوئی گھوٹالہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی کامیابی ہے اور عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ انتظامی اداروں کو کابینہ کی تقلید کرنی چاہیے۔ جی ہاں، عمران خان کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے۔ انتظامی اداروں کو کابینہ کی تقلید بھی کرنی چاہیے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طویل عرصے کے بعد حکومت کے سیاسی سٹرکچر پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ 2.5 سال کے بعد بھی اس کابینہ کے ایک بھی رکن کا کوئی گھوٹالہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی کامیابی ہے اور عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے خواتین ارکان پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی ہے، جس میں فلاح عامہ کے منصوبوں، خواتین اراکین اسمبلی کو مزید بااختیار بنانے اور مسائل کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والوں میں مومنہ وحید، آسیہ امجد، عائشہ نواز اور شاہینہ کریم کھوسہ شامل تھیں۔ چیف وپ پنجاب اسمبلی MPA سعید عباس علی شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی طارق۔ جی علی طارق، بتائیے گا، خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے خواتین ارکان
पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। जो खवातीन ने मुलाकात की है उसमें मोमना वहीद, आसिया अमजद, आयशा नवाज और शहीना करीम खोसा ने मुलाकात की है। और ये जो मुलाकात का सिलसिला है ये आज से नहीं, पिछले कई जो रोज हैं उनसे जारी है। पहले जो उस्मान बुज़दार साहब ने नून लीग की 3 विकेटें गिराई हैं, जिनमें नशाद दाहा, मोहम्मद अरशद और काशिफ जो थे नून लीग के एमपीए, उनकी मुलाकात की है। और अब जो है क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है तो जो कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं वो वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार जो है हमारे ज़राए ने बताया कि फंड भी जो है वो भी देना शुरू कर दिए हैं एमपीए को, ताकि आगे सेनेट का इलेक्शन है और उसमें जो है जो बोलियां लगती हैं ज़मीर की, जो पैसे लेके इधर उधर वो हो जाते हैं एमपीए, तो वो ना हो। इस वजह से वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार जो है पिछले एक हफ्ते से जो मुलाकातों का सिलसिला है जारी है। नून लीग के एमपीओ के साथ भी मुलाकात का सिलसिला जारी है और जो उनके अपने एमपी हैं उनसे भी मुलाकात का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें बता रहे थे सूबाई अरकान असम्बली खवातीन की मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए तालीमी सेशन 2020-21 का कैलेंडर जारी। वफाकी निज़ामत तालीमात के मुताबिक नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। मौसम गर्मा की छुट्टियां कम करके 1 माह कर दी गई। मौसम गर्मा की छुट्टियां 2 से 31 जुलाई तक होंगी। 5वीं और 8वीं के मरकजी इम्तिहानात 18 से 31 मई तक होंगे। पहली से चौथी और छठी 7वीं के इम्तिहानात इदारे यकम से 15 जून तक खुलेंगे। 5वीं और 8वीं के मरकजी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 30 जून को होगा। पहली से चौथी और 7वीं 8वीं के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 1 जुलाई को होगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक MNA हाफिज सुलेमान भट्ट इंतकाल कर गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक गुज़श्ता रात हाफिज सुलेमान भट्ट को दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ। हाफिज सुलेमान भट्ट की नमाज जनाजा आज मंसूरा में अदा की जाएगी। हाफिज सुलेमान भट्ट गुज़श्ता रात हार्ट अटैक के बाद निजी अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज थे। हाफिज सुलेमान भट्ट तवील अरसे से शुगर के मरीज भी थे। इनकी नमाज जनाजा बाद जुम्मा 2 बजे मंसूरा में अदा की जाएगी। जनाजा 700 उमर ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन से उठाया जाएगा। हाफिज सुलेमान भट्ट ने 65 साल की उम्र में हाफिज सुलेमान भट्ट पंजाब यूनिवर्सिटी और सूबा पंजाब में जमात के नाजिम रह चुके हैं। पाकिस्तान में मतलूब काल अदम दहशतगर्द ग्रुप लश्कर इस्लाम का सरबराह मंगलबाग अफगानिस्तान में बम धमाके में मारा गया। कल अदम लश्कर इस्लाम का सरबराह मंगलबाग अपने 3 साथियों समेत अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में सड़क किनारे नस्ब बम के धमाके से मारा गया। नंगरहार के गवर्नर ज़ियाउल हक ने अपने ट्वीट में मंगलबाग की साथियों समेत हलाकत की तस्दीक की है। मंगलबाग दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्वस था। मंगलबाग का ग्रुप लश्कर इस्लाम काल अदम TTP से भी ताल्लुक रखता था जो कि पाकिस्तान में कई दहशतगर्दाना हमले कर चुकी है। वो पाकिस्तान में कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस भी था। मंगलबाग एक ट्रक क्लंटर से जंगजो कमांडर बना और 2008 तक खबर एजेंसी के बाड़ा तहसील में सिक्योरिटी ऑपरेशन होने तक सरगर्म रहा। इस ऑपरेशन के बाद से मंगलबाग फरार हो गया और जनूबी अफगानिस्तान से अपनी सरगर्मियां जारी रखी। आपको बताएं कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद आज कोट DG का दौरा करेंगे, जहां वो कोट DG कला और फैज महल का दौरा करेंगे। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद आज कोट DG का दौरा करेंगे, जहां वो कोट DG कला और फैज महल का दौरा करेंगे। इसके बाद वो सक्खर जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे दोस्त अली लशारी से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी दोस्त अली लशारी, बताइएगा वफाकी वजीर शफकत महमूद दौरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने जो है वो ठट्टा, हैदराबाद, जामशोर और खैरपुर नाथन शाह के मुख्तलिफ तारीखी मुकामात जिसमें मकली, नेक्रोपोलिस, शाहजहान मस्जिद और रनी कोट के बाद जो है आज एक रोजा दौरे पर कोट DG पहुंच रहे हैं।
جس کے بعد کوٹی جی کے قلعے جو تاریخی قلعہ ہے اس کا دورہ کریں گے اور خیرپور میں فیض محل کا وزٹ کریں گے، جس کے بعد وفاقی وزیر جو ہے وہ دونوں مقامات کا وزٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ سکر سرکٹ ہاؤس میں رات کو جو ہے وہ رہائش پذیر ہوں گے۔ جی دوست علی لاشاری، یہ بھی بتائیے کہ ان کی ملاقات کن کن سے طے ہے کوٹی جی میں؟ جی بہت شکریہ دوست علی لاشاری۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وزیر تعلیم آج کوٹی جی میں آ رہے ہیں، انہوں نے جیسا کہ قلعہ اور فیض محل کا بھی دورہ کرنا ہے، کن رہنماؤں سے ملاقات کرنی ہے؟ دیکھیں یہاں پر تو پی ٹی آئی رہنما ایسا کوئی ہے نہیں جس سے وہ ملاقات کریں، البتہ کوئی سکھر میں کسی رہنما سے ان کی ملاقات ہو، اور یہاں پر جو سکھر کا جو صدر ہے ان کا ڈویژن کا وہ ہے یہ ان کا جو ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور رہائش پذیر ہوئی انہی کے پاس ہوگی۔ یہاں پر کوٹی جی میں ایسا کوئی رہنما کوئی ایسا رہنما نہیں جن سے ملاقات بھی ہو سکے۔ بہت شکریہ دوست علی لاشاری، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود آج کوٹی جی کا دورہ کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کرمنل اقتدار میں آئیں گے تو پھر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کسی فیکٹری میں چور کو بٹھا دیں گے تو وہ تباہ ہو جائے گی، ملک کے نظام ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ شارٹ ٹرمزم کے اوپر اس میں کرپشن بھی تھی، شارٹ ٹرم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچیں اور پھر اس کے بیسس پہ الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلے۔ یہ جو ڈیمز ہم نے 50 سال کے بعد فیصلہ کیا 2 بڑے ڈیمز بنانے میں، جس میں ممن ڈیم پرابلی جلدی بھی بن جائے گا اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پشاور کے اوپر اور پانی واٹر سپلائی کے اوپر، پانی کے آگے ہمیں جو پرابلمز ہوں گے، اور بجلی بھی بن جائے گی۔ 1000 میگا واٹ کا پوٹینشل تھا جو کہ اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈیمز بناتے رہتے تو آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو سبسیڈائز نہ کریں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کا، کیونکہ وہاں کے بجلی کے ریٹس ہمارے سے کم ہیں۔ مجھے دوسری چیز اس کی جو دو ہم بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اس کی کلین انرجی، ہائیڈرو الیکٹریسٹی، صاف انرجی ہے جو کہ آج کل کلائمیٹ چینج کے اندر بہت میٹر کرتی ہے، اور ہم پاکستان سب کو پتہ ہے کہ ہم بڑے ونریبل ہیں کلائمیٹ چینج۔ پاکستان کو دنیا کے 8 یا 9 نمبر پہ پاکستان کا ہے جو کہ سب سے زیادہ ونریبل ہے کلائمیٹ چینج پہ۔ تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم کلین انرجی لے کے آئیں۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن خود ہی اپنی دشمن ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کرپشن چھپانے کے لیے تھی۔ لوگ ان کے ساتھ باہر نہیں نکلے، غیر منتخب افراد کی جانب سے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے دباؤ میں آ کر اپوزیشن رہنماؤں کو این آر او دیا تھا، لیکن تحریک انصاف کسی کے پریشر میں نہیں آئے گی۔ خیبر پختونخوا میں اپنی گورنمنٹ کے 20 سٹنگ ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ شبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا ہے اور اس میں کوئی ایسی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو کہ قابل قبول نہیں تھیں۔ سٹنگ ایم پی ایز کو نکالنا یہ پاکستان تحریک انصاف یا یہ پرائم منسٹر عمران خان ہی کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی، نہ ماضی میں نہ حال میں، صرف ایک ہماری ایک یہ کنٹریبیوشن ہے اس مقصد کے لیے جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انتخابات سینٹ کے اور جو دیگر انتخابات ہیں وہ شفاف طریقے سے ہوں۔ یہ الیکشنز جو کہ آنے والے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ یہ بھی آزاد طریقے سے ہوں، اور اس کے لیے جو بھی ہمیں قانونی طور پہ جو بھی ہم سے جو لوازمات اس کی پوری کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنی پڑے وہ ہم کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ یہ کم از کم ہم اپنی طرف سے اس پوری کوشش عملاً اور قانوناً جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں تاکہ یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ اپوزیشن پارٹیز کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ وہ اس مقصد کو کامیاب بنائیں، گو کہ مجھے نہیں لگتا نہ انہوں نے پہلے کیا ہے نہ اب کریں گے، لیکن امید رکھتے ہیں ہم، گو کہ ان کے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی اگر اس کی کوئی حیثیت ہے۔
रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत अपनी हर नाकामी का इल्जाम नून लीग पर ही डाल रही है। वजीर आजम ने मीनार पाकिस्तान वाला लेक्चर फिर दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान को कोई काम नहीं आता, हुकूमत चलाने की समझ नहीं है। एक ऐसी हुकूमत जिसका तीसरा साल गुजर चुका है, उस हुकूमत का सिलेक्टेड और ताबेदार वजीर आजम आज भी यूं ही मुखातिब होता है कि जैसे वो किसी एनजीओ का सरबराह हो, किसी ऑपोजिशन जमात का सरबराह हो, या वो डी चौक के कंटेनर से खड़ा होकर तकरीर कर रहा हो। शायद इमरान नियाजी साहब को ये बात अभी तक यकीन नहीं आ रही कि वो हुकूमत की क़यादत या पाकिस्तान की सिलेक्टेड वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तीसरे साल भी वो मुस्लिम लीग नून पर अपनी हर नाकामी का इल्जाम फेंक रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। जिस निजाम के बुसीदा होने की वो बात करते हैं, जिस निजाम के नाकारा होने की वो बात करते हैं, इसी निजाम से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई है। 2013 और 2018 के दरमियान 18वीं तरमीम की मौजूदगी में हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गए, गुज़श्ता साल की निस्बत बदउनवानी में इजाफा हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में बदउनवानी और दयानतदारी पर अमल पैरा मुमालिक पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में 2020 में करप्शन बढ़ी। 2019 के मुकाबले में 2020 में पाकिस्तान का स्कोर कम हुआ है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान ने 100 में से 31 पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान की रैंकिंग में 180 मुमालिक में से 124वां नंबर है। 2019 में पाकिस्तान का स्कोर 32 था, जबकि 2019 में पाकिस्तान का 120वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक हुकूमत को मुक़न्ना इंतजामिया और पुलिस के शोबों में कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। करप्शन से पाक मुमालिक में दुनिया भर में डेनमार्क, न्यूजीलैंड सर फहरिस्त रहे, जबकि शाम, सोमालिया और जनूबी सूडान सबसे नीचे रहे। मजीद आपको बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि यह है साफ चली, शफाफ चली की असल हकीकत। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 2019 के मुकाबले में 2020 में पाकिस्तान में करप्शन 4 दर्जे बढ़ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने चीनी, आटा, अद्वियात, LNG चोरी पर मोहर सबत कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही PTI का असल चेहरा है। माजी में इमरान खान खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मिसालें दिया करते थे। सिलेक्टेड हुकूमत ने दयानतदारी का सिर्फ लवादा ओढ़ा है। PTI की हुकूमत ATM को फायदा और अवाम को नुकसान पहुंचाती है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं PTI के दौर हुकूमत में करप्शन का मर्ज छूत की तरह मुआशरे में फैल रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा, बदउनवानी और नाअहली हुकूमत का ट्रेड मार्क बन गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने वज़ीर आज़म के एहतसाब के नारों की कली खोल दी। एहतसाब तब ही बेलाग होगा जब हुक्मरानों का दामन बेदाग होगा। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जे की दलदल में फंसा कर इसकी मईशत तबाह कर दी। पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जा लेने वाला 50वां बड़ा मुल्क है। मुल्क को नजरियाती असास से महरूम करने की साजिशें हो रही हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉट।
अहम खबर है, आपको अपडेट करें कि 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। जी हां, आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। समरी में पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़, डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मट्टी का तेल 7, लाइट डीजल 5.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम इमरान खान देंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। समरी में पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़, डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मट्टी का तेल 7, लाइट डीजल 5.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश की गई। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम इमरान खान को भिजवा दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मनाने के लिए हमने आज तक एक कदम नहीं उठाया। मनाना चाहते हैं ना मनाएंगे। अकोड़ा खटक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कि नैब में BRT के खिलाफ कोई केस नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। जी आज तक PDMs के मनाने के लिए हमने एक कदम भी नहीं लिया। ना हम उनको मनाना चाहते हैं, ना हमने कभी कोशिश की, क्योंकि वो झूठ के प्रोपेगेंडे पे निकले, वो अपने आप को बचाने के लिए निकले। तो हम तो इन चोरों के खिलाफ आए हैं। इमरान खान का एजेंडा इन चोरों के खिलाफ था। अल्लाह का शुक्र है इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ही मरेंगे। नहीं, ये गलत, आप गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडे करते हैं। जहांगीर तरीन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। हमारे ऑलरेडी नंबर पूरे हैं, हमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। अगर कोई और करेगा उनके मुंह क्या, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंशाल्लाह हम जब होंगे कोई भी हमसे सीट नहीं जीत सकता। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शहीद बीबी और आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो का निकाह आज होगा। तकरीब में खानदान के अफराद, बख्तावर की सहेलियां और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। बिलावल हाउस में खुशियों का समा हो गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी आज महमूद चौधरी की दुल्हन बनेंगी। निकाह के मौके पर महदूद लोग शरीक होंगे। शादी की तकरीब बिलावल हाउस में ही मुनक्किद होगी, जिसमें दोनों खानदान के करीबी लोग और मुल्क की अहम शख्सियात शरीक होंगी। आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त की जानिब से बख्तावर को थर की दुल्हनों के लिए बनाए जाने वाले रवायती लिबास तोहफे दिए गए हैं। मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों की शॉलें और दीगर ड्रेसेस का भी तोहफा दिया गया है। 30 जनवरी यानी कल को बख्तावर भुट्टो की शादी के सिलसिले में इस्तकबालिया दिया जाएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और दरीना दोस्तों को मदऊ किया जाएगा। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को शादी की तकरीब में दावत नहीं दी गई, जबकि मरियम नवाज दावत मिलने के बावजूद तकरीब में शरीक नहीं होंगी। लाहौर में भी बख्तावर भुट्टो की शादी के सिलसिले में अलग तकरीब का इनेकाद होगा, जबकि इस्लामाबाद में भी बख्तावर भुट्टो की शादी की खुशी मनाई जाएगी। अब बात करें महंगाई की, तो लाहौर में ब्रायलर की सप्लाई खपत के मुकाबले 50% कम हो गई, जिसके सबब आज ब्रायलर गोश्त 10 रुपए किलो महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता रोज कीमत 277 रुपए किलो थी, जो बढ़कर 287 रुपए किलो हो गई। रवा हफ्ते मजमूई तौर पर 40 रुपए किलो तक महंगा हुआ। इतवार के रोज ब्रायलर गोश्त 247 रुपए किलो था, जो मुसलसल इजाफे के साथ आज 287 रुपए किलो की सतह पर पहुंच चुका है। ब्रायलर ट्रेडर्स के मुताबिक ब्रायलर की सप्लाई कम हो रही है, जिससे कीमतें ज्यादा हैं। निर्ख सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर होने के बाद दुकानदारी भी मुतासर हो रही। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtodaynews.tv और देखते रहिए